सो ये टेबल आपको नजर आ रही है, ये टेबल्स हमने लास्ट टाइम किए थे। ये पेयर वाइज हमने डिपेंडेंसी टेबल्स भी बनाए थे। ये सर समझ आ गई थी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी की थी, और हमने जब मल्टीप्लाई किया था अनकंडीशनल इसके साथ मिला के तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया था। जॉइंट का मतलब ये है कि दिस एंड दैट, ठीक है ना। इंटरसेक्शन, कॉमा का मतलब इंटरसेक्शन होता है। And then we did this also for more than two variables or for other pairs, and you see, so if you look at these tables, of course it gives you a very nice view just like truth table, but it's not easy to maintain. For example, if this table grows, if you have more than let's say if you have 4 variables, 3 का तो हमने कुछ जुगाड़ निकाल लिया ना कि K1 को हमने टॉप रो में डाल दिया, K2 को हमने कॉलम में डाल दिया, ठीक है, इस तरह। सो ये K1 है, ये K2 है, और K3 और K3 की वैल्यूज को हमने इस तरह डायमेंशन नहीं है, हमने उसको अलग अलग कर दिया। अब जब 4 हो जाएंगे, K4 आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? ये तरीके फिर ये स्केलेबल नहीं है ना। यस सर। सो इसका मतलब ये है कि वी नीड टू हैव अ बेटर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस स्टफ। ये तो खैर हम कर चुके हैं। वैसे ये भी एंड पे आप में से किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि वी arrived at this formula, this one, yeah. So these two factors basically came from those two sequences, a streak of ones followed by a streak of zeros, और ये फिर this is the number of ways in which those can happen. Different the successes and failures can be distributed in different ways. तो इसमें अचानक ये फॉर्म कहाँ से आ गया? ये आप कम्बिनेटोरियली खुद ही ट्राई कर सकते हैं ना। ये परमुटेशंस हैं, और परमुटेशंस और कम्बिनेशन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है ये आप खुद कर लेंगे। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। So let's get back to that. How will you represent these different distributions, be it unconditional distribution for each draw, be it dependency between two or joint distribution of two draws, any two draws, and then sum of successes in two draws, and so on. So this PGF will help us here. So if I start with draw I में जो मेरे पास वेरिएबल है वो क्या है? Ki है, which is the success indicator, a Bernoulli random variable. अब पता है Bernoulli random variable का PGF कैसे लिखते हैं? So for any I, it doesn't matter which I know this is my failure probability, and I know this is my success probability, so I just multiply this by z, and I multiply that by 1, and then I have my PGF. Is this clear? Yes sir. अच्छा, now I can do the same for the pair. वहां पे चूंकि मुझे टेबल मिल रहा है तो मैं बार बार उधर नहीं देखूंगा। मुझे पता है कि उस टेबल में मेरे पास K1 अगर इस साइड पे हो जाए, K2 इस साइड पे हो जाए, तो यहाँ पे मेरे पास वो 4 प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं K1 और K2 की joint. For example, this one will be that K1 and K2 both are 0, one is 0, one is 1, one is 1, the other is 0, and both are 1. You just need 4 terms, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये है कि मैं यहाँ पे तो मैं एक z यूज कर सकता था, because there was only one variable. Ki was just one variable, and I was doing them separately. But if I need joint distribution, I cannot use one z, क्योंकि वन z में मेरे पास कितने टर्म्स आ जाएंगे? एक कांस्टेंट आ जाएगा पॉलिनोमियल में, और एक क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। मुझे 4 टर्म्स चाहिए ना ये। यस सर। तो ये एक वेरिएबल इनफ नहीं है। सो बेसिकली आई नीड one thing like z for the first variable and the other for second variable. I need 2 variables, z1 and z2. समझ आ गई? अब जब Yes, sir. z1 और z2 दोनों का एक्सपोनेंट 0 होगा, so that would mean 0 0. So now that probability is now multiplying constant. Constant mean that z1 is raised to 0th and z2 is also raised to 0th. ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. फिर सेकंड को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे बताएं जरा। z1 को जो मल्टीप्लाई कर रहा है इसका क्या मतलब लेंगे आप? सर इसका मतलब ये है कि सर z2 रेज़ टू पावर 0 है, z1 रेज़ टू पावर 1 है। हाँ, तो इसका मतलब K1 K2 में क्या है कि K1 आप यहाँ पे ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? कि K1 is equal to what and K2 is equal to what? K1 is equal to 1 and K2 is equal to 0. K1 is equal to 1, K2 is equal to 0, क्योंकि जो K1 की वैल्यू है वही z का एक्सपोनेंट है।
जो k2 Yes, की sir. वैल्यू है वो z2 का एक्सपोनेंट है. सो इजी, रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है. और जब Yes, मैं sir. इसको चेंज कर दूंगा, when I take this, स्वैप करूंगा, I make this a 0, yeah, Yes, and sir. this a 1, तो ये क्या बन जाएगा? This will give me the probability of that, and that will multiply z2. और यहाँ पे क्या होगा? Yes. लास्ट वन, So in this case, the both probability both are K1 1. equal to 1, K both are 1, sir. Both are 1. So अब देखो ना, you actually can represent the whole distribution of these two variables by a single line. Yes, This is sir. not possible in any other way. आप पीडीएफ लिखेंगे तो इसमें क्या, फॉर एग्जांपल इसकी वजह से ये हमें पता है कि ये पीडीएफ की ही वैल्यूज है ना, ये 4. Yes, sir. तो पीडीएफ जी. जब आप लिखते हैं तो पीडीएफ में आपको वो इवर्सन ब्रैकेट यूज करना पड़ रहा है कि अगर K1 Yes, इससे sir. बाहर है तो उधर 0 होना चाहिए. यहाँ पे वो चकचक है ही नहीं. यहाँ पे आपको पता Yes. है कि Z1 Z2 जहाँ पे आ रहा है उसका एक ही मतलब होगा. अब देखो ना, Yes. वो जो इवर्सन ब्रैकेट आपसे कैसे बच जाते हैं. द फैक्ट दैट Z1 for example squared is not here, yeah, and Z2 squared is not here, तो बाकी they all get multiplied by 0, so you don't even need to talk about them. Automatically वो निकल जाते हैं सीन से. Yes, sir. ठीक है. So and this way, now the good thing about this PGF is now that you can also think about the PGF of the sum, even though they are not dependent, even though they are not independent. Independent में तो बहुत आसान है ना, ये सम का क्या हो जाता है, आप दो को मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि K1 और K2 क्या है, डिपेंडेंट है. लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना कि K1 प्लस K2 कैसे आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल K1 प्लस K2 की एक वैल्यू क्या होगी पॉसिबल, 0 होगी ना. Yes, sir. तो वो इधर आएगा. तो इसका मतलब है कि दिस शुड करस्पॉन्ड व्हेन द सम इज 0, या Yes, sir. दिस शुड करस्पॉन्ड when the sum is 1, and this should correspond when the sum is 2. K1 plus K2 की इन तीनों के अलावा कोई वैल्यू हो सकती है? No, sir. 0 plus 0, 0 plus 1, 1 plus 0, 1 plus 1. Yes. अब आपको Yes, sir. पता है कि ये सारे 0 plus 0, अब ये 0 एक ही तरह आ सकता है, 0 plus 0. तो कहाँ कौन सा टर्म Yes. आएगा? ये वाला, ये as it is इधर नीचे आ जाएगा. Because there is only one way to have that sum equal to 0. Got it? Yes, sir. अच्छा, अब sum is equal to 1 दो तरीकों से आ सकता है. एक ये है कि 1 0 और दूसरा क्या है 0 1. 0. तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे. जी. अब चूंकि दोनों का वैल्यू सेम है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, नो प्रॉब्लम. Yes, sir. और यहाँ पे रिमेंबर, यहाँ पे हम z यूज कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग z1 and z2 क्योंकि K1 plus K2 is one variable. It is a single Yes, sir. random variable. So we can use z. We will use z1 z2 when we have two variables. Even if this K1 and K2 change, let's say I change this K1 to K3 and this K2 to K4, K3 K4, I can still use z1 z2 because z1 z2 just reminds me that I need two variables. I don't need to write z3 z4, yeah. Yes, sir. So अब ये समझ आ गई कि z squared के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये as it is इधर ये आ गया. जी, sir. So this way you can now go on and you can construct the PGF for 3 variables. There you will need z1, z2, z3. तो यहाँ पे देखो ना, z1 plus z2, z3. Interestingly इन सब के साथ एक ही चीज मल्टीप्लाई हो रही है, इन पेयर्स के साथ एक ही चीज मल्टीप्लाई हो रही है, और इस प्रोडक्ट के साथ भी एक. और this can be combined to have a PGF of a sum of 3 variables. So 3 draws. So the number of successes in 3 draws. और ये एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना. You don't need that product of PGFs. इसको कंप्लीट करके अगर आप जाते हैं तो you will arrive at the same conclusion which we did last time. The PGF of a sum of n random variables will give me the number of successes in how many draws? In n draws. And I get my PGF. Once I get my PGF, मुझे पता है कि यहाँ पे समेशन आएगी. तो पहले तो क्लियर हो गया कि 0 to n इसकी वैल्यूज हैं. z to cat आएगा, whatever is multiplying z to cat automatically becomes my PDF. मुझे पता है. So I got my PDF for the sum of these n random variables automatically, no problem.
now I can resume that binomial route to the same problem. So we solved this problem in two ways. This was the PGF way, and the last lecture we solved it by combinatorial reasoning, and you can use binomial reasoning. Forget about counting, forget about PGF, anything. You just go for conditioning. So xi are all Bernoulli random variable and dependent. Sm is the number of successes in m trials, assuming they are all Bernoulli. Sr is the number of successes in r trials, assuming they are all Bernoulli. Yeah. And here we assume a condition that m trials, and m is larger than, basically m is larger than r. So if in m trials you want to ensure n successes, and remember this n here, it is seen as the number of successes, but in our actual problem this n was the number of draws. Remember this, yeah, it was the number of. तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट दिमाग का चाहिए कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो नहीं रहा, और आप एक्सपेक्ट इसलिए भी ना करें कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं ना. हम बेसिकली we want to use independent variables to solve our problem of dependent variables. So ये इतना सीधा वैसे नहीं होना, but it will work. So SR, यहाँ पे देखो ना, ये R हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल सक्सेसेस थे कि R से ज्यादा सक्सेसेस हो नहीं सकते. So R is the number of possible successes. Yes, sir. So and you see it turns out that it actually is the same sum of. So यहाँ पे आप उसको sum of dependent variables देख रहे हैं, यहाँ पे आप उसको देख रहे हैं as a sum of independent variables but conditioned on. और remember this condition is not the conditioning of probabilities. जो probability में हम a given b करते हैं ना, उसका मतलब और होता है, उसमें इस symbol का अपना कोई मतलब नहीं होता जब तक आप इसके ऊपर probability apply ना करें. ये ज़हन में रखें. If I remove this probability, yeah, and if I simply say a given b, इसका कोई मतलब नहीं है. ये बात clear होगी? Yes, sir. a given b is nothing because a is an event, yes. b is an event, a given b का कोई मतलब नहीं है. लेकिन यहाँ इसका मतलब है, क्योंकि ये कंडीशनिंग उस तरह की नहीं है जिस तरह की यहाँ पे हो रही है. इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन है. आप उस वेरिएबल का जो डोमेन है आप उसको चेंज कर रहे हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. हम पहले भी देख चुके हैं कि आप साइन को साइन का भी डोमेन चेंज करते हैं, वहां पे तो कोई कंडीशनिंग इस तरह की नहीं होती. ठीक है, क्लियर हो गई बात? Yes, sir. So which means that I can use but this, I know this is a condition, तो प्रोबेबिलिटी जब मैं कैलकुलेट करूंगा इसकी, इस रैंडम वेरिएबल की, रिमेंबर ये वो वेरिएबल है जिसमें एक कंडीशनिंग मैंने शामिल कर दी. देखो ना, बजाय ये चीज बार बार लिखने कि मैं m और n उधर लेके जा रहा हूं. So just a shorthand for this complicated expression. I know that the value taken by this random variable, let's say k is the value. The only difference this n and m are making, अगर ये ना होते तो फिर यही होता ना, मेरा क्वेश्चन ये होता, probability of SR. So I include that as a condition, and यहाँ पे वो मतलब इसका बन सकता है क्योंकि ये probability अब मैंने डाल दी है. क्लियर हो गई बात? सही. और इसके बाद मुझे पता है कि ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है. So I'm just conditioning one binomial on another binomial, no problem. And you think of it as a given b, इसको आप a मान ले, इसको आप b मान ले, a given b को आप बेस रूल लगा लें, तो ये बेस रूल है, और बेस रूल के बाद ये बाइनोमियल है, और एंड पे आपके पास एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन आ जाता है जो हमारे पास ऊपर आ गया था. तो अब मुझे बताओ ये कितने लाइनों में ये आपके पास ये आ गया है? टोटल आप गिन ले कितने लाइन्स हैं? 3-4 लाइन में अब बात मुक गई ना इधर. Yes, sir. और उधर हमें कितनी रीजनिंग चाहिए थी? इवन ये पीजीएफ वाली रीजनिंग भी कितनी मुश्किल थी ना. इसकी वजह ये है कि we are using the power of random variables. Here we are relying, of course there we were relying on PGF. PGF was also a powerful tool, but we were not exploiting the power of random variables. Here we are leaving everything to the math of random variables, and that is making it so easy
and this is what we mean by a hypergeometric random variable, ठीक है, hg, और यहाँ पे ये नोट कर लें कि the first parameter is the number of what, the number of draws, ठीक है, Yes. the last one is the number of objects from which you are drawing without replacement, without replacement इसमें शामिल है, और ये बीच वाला क्या है, it is the number of favorable objects, Favorable. जिसका ताल्लुक सक्सेस से है, ठीक है, और ये आप पहले भी डिस्कस हुआ था कि यहाँ पे जो सपोर्ट है वो ये है, बेसिकली ये इधर से आया है कि none of these coefficients, by these are remember these are binomial coefficients and they are actually they represent some combinations, number of combinations, so combination में कभी भी नहीं होगा कि this k will never be larger than r, yeah, this n minus k will never be larger than this m minus r, and this n will never be larger than this m. So when you include all those conditions combined, you get that the support, the smallest value in the support has to be this, and the largest value of the support has to be this, ठीक है. एक चीज और जहन में रखें कि नॉर्मली आपने दो नोटेशन यूज देखे होंगे, प्रोबेबिलिटी, इवन प्रोबेबिलिटी से पहले भी आपने ये नोटेशन देखी होगी. ये जो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं mn से, mn, तो इसकी एक नोटेशन आपने ये देखी होगी mcn, याद है आपको? Yes sir. अच्छा, ये मुनीब अहमद नासिर, आप गलती से कुछ क्लिक कर रहे हैं तो आप उसको अनक्लिक कर दें, ठीक है, आपने कोई गलत चीज क्लिक की है, ठीक है. सो अब इन दोनों में कोई बता सकता है कि इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों अगर इक्वल हैं तो क्या पड़ी है कि हम ये दो दो नोटेशंस लिए फिर, क्या मसला क्या है? व्हाई आर वी मेकिंग आवर लाइफ डिफिकल्ट बाय हैविंग टू नोटेशंस? इसका मतलब ये है बेसिकली कि ये जो नोटेशन है ये साइड वाली, इसका मतलब सिर्फ काउंटिंग में ही है. सो C is for combinations. इसका मतलब ये है कि if n is larger than m, that will be a very stupid question to ask, ठीक है. Although you will say oh it is 0, लेकिन ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि m और n को आप रियल वैल्यूज दे दें. फॉर एग्जांपल you would never imagine m to be half, yeah, or you would never imagine n to be for example 1.9, yeah. Yes sir. ये चीजें आप इस नोटेशन में नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब काउंटिंग है, काउंटिंग में ये चीजें नहीं आती. लेकिन बायनोमियल थ्योरम आपको पता है आपने कहां कहां यूज किया है? बायनोमियल तो हर जगह यूज होता है ना. Yes sir. बायनोमियल तो यहाँ पे भी यूज होता है. आपके पास यहाँ पे आता है कि 1 plus x और रेज टू -3/2, इस पे भी आप बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, न्यूटन Yes, वाला जो जनरलाइज्ड थ्योरम है. अब यहाँ पे ये जब आते हैं तो फिर हम उसको ऐसे लिखते हैं. So this may or may not, that's why this is called binomial coefficient. Binomial coefficient. This may or may not represent the number of combinations. ये number of combination तभी होंगे जब ये n और m आप तमीज वाली वैल्यूज देंगे. आप उसके अलावा वैल्यू देंगे तो इसका फिर भी मतलब बनता है, लेकिन वो फिर binomial coefficient एक्सपेंशन में ही बनेगा, काउंटिंग में नहीं बनेगा. ये क्लियर होगी बात? Yes sir. Which means that here we need to be very clear that in the support, because it is a problem of draws and favorable elements and unfavorable elements, तो यहाँ पे तो हम ये स्टुपिडिटी नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई गलत वैल्यूज देंगे. स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पे इसका पीजीएफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेट्स से मैं पीजीएफ लिखूंगा, तो पीजीएफ में आप समेशन स्टार्ट करते हैं k इज इक्वल टू किससे? स्मॉलेस्ट वैल्यू से, ठीक है. Yes. और यहाँ पे आपकी क्या होगी? उसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली हो जाएगी ना ये. Yes sir. अगर आप कोई उस तरह की नॉनसेंस नहीं लिखना चाहते तो. और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी? जो मैक्सिमम. Yes. समझ आ गई? और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आप ये फार्मूला इधर लगाएंगे इधर, ठीक है. और फिर उसके बाद आप z2 पावर z2 kth पावर, रिमेंबर आप लिखते हैं kth पावर, दिस इज ओके.
क्योंकि दिस इज द पावर, और z to k एक्सपोनेंट k वो भी है, वो दूसरा तरीका है बोलने का। अच्छा, हमने ये बात उधर नहीं छेड़ी थी, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता था ना कि किस खुशी में मैंने यहाँ पे 0 to n लिखा है। समझ आ गई बात? यहाँ पे ये जीरो, स्मॉलेस्ट वैल्यू जरूरत नहीं कि 0 हो, और लार्जेस्ट वैल्यू जरूरत नहीं है कि n हो। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, कोई बता सकता है? और इन फैक्ट मैं उधर इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट दिस वे व्हिच आई ट्राइड टू एक्सप्लेन हियर, आई एम राइटिंग हियर, इसको आप फिलहाल भूल जाइए, मैं बाद में डिस्कस करता हूं इसको। ये यहाँ पे देखो मैंने वही चीज दोबारा लिख दी है फ्रॉम 0 to n, क्योंकि 0 to n लिखना ज्यादा आसान है बजाय ये अजीब गरीब किस्म की एक्सप्रेशन लिखने की। तो यहाँ पे आप गेस करें कि मैं किस चीज को यूज कर रहा हूं। मैं ये बायनॉमियल कोएफिशिएंट का जनरल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ये जो पीडीएफ में आपने लिखा है, ये मैंने पीडीएफ लिखा हुआ है, लेकिन ये जो अब बताए पीडीएफ उन जगहों पे 0 होता है जहां पे आप कोई गलत वैल्यू देते हैं, तो ठीक है ना। जी पीडीएफ आउटसाइड सपोर्ट आप वैल्यू देंगे तो पीडीएफ ने क्या होना है, 0 होना है। तो वो चीज बायनॉमियल कोएफिशिएंट का फार्मूला वो इंश्योर करेगी उस चीज को। ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, दिस विल बिकम, आपको याद है हमने जो जब हम पीडीएफ लिखते तो हम ये सिंबल यूज करते थे एफ, ये एक्चुअल पीडीएफ का होता था, और दूसरा हम क्या यूज करते थे, ये वाला ना, याद है आपको? यस सर। तो इन दोनों में क्या फर्क था, ये अनडिफाइंड हो जाता था जब आपको गलत वैल्यू देते थे, तो क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है बाहर, सपोर्ट से बाहर, ठीक है। yes. लेकिन ये क्या होता था, ये आपको 0 दे देता था। पीडीएफ का मतलब ये है कि वो आपको एनीथिंग आउटसाइड द सपोर्ट विल हैव 0 प्रोबेबिलिटी, सो वहां पे पीडीएफ 0 दे देता था। यहाँ पे भी यही है कि ये बायनॉमियल कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, लेकिन जो ये वाला ये जो फॉर्म हमने ये जो सपोर्ट वाली चीज यहाँ पे अनडिफाइंड है। so इसका मतलब ये है कि वी लीव इट टू द बायनॉमियल कोएफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। एंड वी विल हैव अ सिंपल फार्मूला। इस समेशन में ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस समेशन में सारे नॉन जीरोज नहीं होंगे, कुछ इसमें 0 होंगे, क्योंकि यहां पे k की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है, 0 स्टार्ट। अब यहां पे ये 0 to n सारे वैल्यूज सपोर्ट में नहीं है, सपोर्ट तो ये रहा आपका ना। लेट्स से मैं इसको k मिनिमम कह रहा हूं और इसको मैं k मैक्सिमम कह रहा हूं फॉर आसानी। तो यहां पे कहीं पे k मिनिमम होगा और यहां पे कहीं पे क्या होगा, तो इसके अलावा मुझे प्रोबेबिलिटी 0 मिलनी चाहिए। वो 0 कहां से मिलेगी, वो ये बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स खुद ही हैंडल कर लेंगे उसको। बायनॉमियल कोएफिशिएंट का जो जनरल फार्मूला है, मैंने एक लेक्चर में बताया है, वो जनरल फार्मूला खुद ही 0 हो जाता है जब आप गलत वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। ओके। आपके जहन में ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दे दें 3/2, वो आपने यहाँ पे इस समेशन में वैसे ही नहीं देना, ठीक है। यस। सो अब यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले की तरफ आ जाता हूँ। ये एक नई चीज मैंने ट्राई की है और ये जिंदगी बहुत आसान बनाएगी। लेट मी गो बैक टू दी दिस नोटेशन। इस नोटेशन में ये गौर से देखिए कि यहाँ पे हम जब ये नोटेशन लगाते हैं तो लेफ्ट साइड पे क्या होता है बताएं। इन जनरल यहाँ पे तो एस आर है ना, इन जनरल यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाम बताएं उस चीज का। यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, रैंडम वेरिएबल इज जस्ट वन पॉसिबल फंक्शन। याद आ रही है आपको बात? यस सर। और यहाँ पे क्या होना चाहिए राइट साइड पे, यहाँ पे सबसेट होता है। सबसेट क्योंकि इस फंक्शन का एक डोमेन होगा, इस फंक्शन का क्या होगा एंड, और आप उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप उस डोमेन का एक सबसेट लेते हैं और वो सबसेट यहाँ पे आता है।
ये क्लियर होगी बात? Yes, sir. So whenever I'm using this notation, which I will call a restriction in whichever context, this is just one context. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस notation को सिर्फ यहाँ use करूँगा, मैं किसी और जगह use नहीं कर सकता. I can take any set A as my domain, any set B as a subset of that domain, ठीक है? और इस A पे अगर मेरे पास कोई function है f, लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है f जो किस पे है, वो डोमेन A पे है और इसका अपना कोई रेंज है. सो मैं उस फंक्शन को उठा के उसका डोमेन कम कर सकता हूं by writing a smaller set there, and this will be my restriction of f to b, restriction of f to b. ये बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को एक और मकसद के लिए यूज कर सकता हूं. आपको याद है कि हम एफ एक्स जब लिखते थे तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता था? नाम याद है इसका? डिस्क्रीट में ये क्या होता था? डिस्क्रीट पीडीएफ होता था ना? Yes. और ये डिस्क्रीट पीडीएफ आपको पता है कि ये 0 होता था अगर एक्स की वैल्यू सपोर्ट से बाहर है. और Yes. हमारे पास एक और फंक्शन होता था जब इसके ऊपर हम क्या लगाते थे? हैश. तो हैश Yes, इसका sir. रिस्ट्रिक्शन था या नहीं था? आप मुझे बताओ. अब ये आपको समझ आ सकती है ये बात. बेसिकली हैश और इसमें क्या फर्क है? इसका डोमेन पूरा रियल लाइन है, इसका डोमेन पूरा डे. अच्छा. मुझे बताओ एक्स का डोमेन तो सैंपल स्पेस है ना? Yes, sir. लेकिन डेंसिटी का या डिस्क्रीट पीडीएफ का डोमेन क्या है? डिस्क्रीट पीडीएफ को आप क्या वैल्यू देते हैं? रियल नंबर देते हैं ना कोई? Yes, sir. आप ये लिखते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स, तो ये एक्स कहां से आ रहा है? रियल लाइन से आ रहा है ना? Yes, sir. So fx is a function from real numbers to real numbers. और अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी के तौर पे देखते हैं तो आपको पता है कि 0 और 1 तक जाता है. ठीक है की बात है? जी. अब यहां पे मुझे ये बताओ ये fx हैश का डोमेन क्या है? ये पूरा रियल लाइन नहीं है, वो ये पूरा रियल लाइन, डिस्क्रीट पॉइंट्स नहीं होते. ये सिर्फ सपोर्ट है इसका. Yes, sir. अब समझ आ गई? लेकिन ये तो 0 हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता. f हैश 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें आप 0 वैल्यू कब मिलेगी डेंसिटी की? जब आप सपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे. डू यू रिमेंबर दैट? जी सर. तो बाय डेफिनेशन दिस f हैश हैज टू एक्सक्लूड 0. ये मैं राउंड लिख रहा हूं. तो इसका डोमेन भी फर्क है और इसका रेंज भी फर्क है. क्लियर होगी बात? जी सर. इसके अलावा इन दोनों में कोई फर्क नहीं है. तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस f हैश इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑफ दैट एक्चुअल पीडीएफ. यस और नो? क्योंकि दिस सपोर्ट इज ए सबसेट ऑफ माय रियल लाइन. और ये वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहा है. ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है इधर कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, उसका कोई भी डोमेन है, आप उस फंक्शन को किसी और स्मॉलर डोमेन में उसको लिमिट करना चाहते हैं. तो बताएं यहां पे यही तो मैं कर रहा हूं. मैं ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर. सो एफ हैश उन दिनों मैं वहां पे एफ हैश इसलिए यूज कर रहा था कि ये कॉन्सेप्ट आपको उस टाइम पे मैं नहीं बता सकता था. इट्स एन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट. But now I can get rid of that f hash. I can simply write, so for example if I want to write that f hash, I can do something. I can simply write my actual PDF, yeah, and I will restrict this actual PDF from the real line to the support, period. I don't need any other technique.
Is this clear? सर वो ए, कोई एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे देता नेट हूँ। का क्या नेट का इशू आ रहा है? ठीक सर वीडियो का थोड़ा सा मसला आ रहा है कि स्लो जा रही है, इसलिए आपके वो पॉइंट्स मिट जाते हैं तो अच्छा, नहीं अभी आप इसलिए थोड़ा आप इसको जरा अपने तौर से देख लें। अगर ये डिले आ भी रहा है, मैं आपको सिर्फ ये बताने जी की कोशिश कर रहा हूँ कि F और B के दरमियान जब मैं ये सिंबल लगा रहा था उसका मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है? यस समझ आ गई सर। तो यहाँ पे भी तो रिस्ट्रिक्शन ही मैं कर रहा हूँ ना। मैं F को जो PDF है उसका डोमेन रियल लाइन है, जी सर। लेकिन एक्चुअल जो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज है वो सिर्फ सपोर्ट में है। तो मैं अगर वो सपोर्ट पे उसको रिस्ट्रिक्ट करूंगा तो मुझे वही एफ हैश मिलेगा जो मुझे, जिसके लिए मैं एफ हैश यूज कर रहा था। बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन ही है। यस सर। So सही I can now, from this point onwards, I can simply use this notation if I want. I don't have to. If you are comfortable with that notation, I'm okay with that. लेकिन just to make sure that you understand this, क्योंकि जब किसी चीज को बार बार यूज करेंगे उसका मतलब ज्यादा क्लियर हो जाता है ना। यस सर। So I can now use both notations just to make sure that you know what we are doing. तो ये जो फार्मूला है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये अगर मैं इसको, ये जब भी मैं लिखता हूं ना, ये वाला नोटेशन जब भी मैं नाम लिखता हूं, फॉर एग्जांपल बाइनोमियल, बर्नौली, जियोमेट्रिक, तो इसका हमेशा मतलब ये एफ हैश ही होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। These are always defined only for support. तो ये एफ हैश मैंने लिखा है, ये फार्मूला बेशक मैं जो भी लिख दूं, तो ये एफ हैश है, ये मैंने एज इट इज रिपीट किया, ठीक है। ये रैंडम वेरिएबल है एक्स जो मैं लिख रहा हूं, ये एफ हैश है। एफ हैश का मतलब क्या है कि एक्चुअल पीडीएफ नहीं है, ये सपोर्ट है पे ही डिफाइंड है। और यहां पे मैंने दूसरा नोटेशन यूज किया है। कैन यू नाउ मेक सेंस ऑफ दिस? क्योंकि यहां पे सपोर्ट एज इट इज, वो सपोर्ट मैंने यहां पे लिख दिया। ये इज दिस क्लियर? सही सर। ठीक है ना। सो इफ यू वांट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड यू कैन गेट रिड ऑफ दिस एफ हैश एंड यू कैन यूज दिस। और ये ज्यादा इसलिए नेचुरल लग रहा है कि यहाँ पे इट डजंट मैटर कि एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। देखो ना वहां पे ये एफ हैश हमने किसके लिए लगाया था जब ये डिस्क्रीट था? यस सर। कंटिन्यूअस के लिए हमें दूसरा सिंबल लगाना पड़ा था। यस सर। हियर यू डोंट केयर, आपको जब जो जिसका जो सपोर्ट है आप उसको इधर लिख दो। यू डोंट केयर कि ये सपोर्ट यस डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूअस का है। सो दिस इज अ मच क्लीनर नोटेशन and you don't have to यस memorize it. It tells you, the symbol tells you what it means. यहाँ पे तो आपको याद रखना है कि हैश का क्या मतलब है। आप भूल गए तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। यस सर। So that's the this is just a lesson that you should always use notation that is self evident. इसको कहते हैं self notation। ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपको बार बार बताना पड़े किसी को, ठीक है। So we are now actually done with this. If you have any question you can ask before we move on to the next actually illustration. और next illustration में शुरू करने से पहले रिकैप कर देता हूं कि लास्ट टाइम हमने वो जो ट्री डायग्राम यूज किया था ना, यस सर। ट्री डायग्राम से हमने टेबल्स बनाए थे डिपेंडेंसीज के, ठीक है। जी और उनको यूज करके, और हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी कि सारे पेयर्स एक ही तरह के बिहेव कर रहे हैं। सो उनको यूज करके हमने बेसिकली मीन भी निकाला था सबका। इस रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन भी हमने निकाला था और उसका वेरिएंस भी हमने कैलकुलेट किया था। यस सर। नाउ आई वांट टू सी इफ वी कुड डू द सेम विद द पीजीएफ। क्योंकि पीजीएफ हमारे पास आ गया ना, अब हमारे पास ये पीजीएफ आ गया, ठीक है। And I know that PGF can be used to calculate mean as well as variance. Do you remember that? हमने PGF को यूज किया था ना। yes. PGF को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे और z की जगह 1 लिखेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा। You remember that? जी सर। और आप उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, 1 लिखेंगे और उससे कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे सारी कहानियां, तो ये कर करके you can also get your variance. We did that. Yes sir. So we can now try this here. I can start with this formula
And for the details, I would like you to practice yourself. But I just start with this formula and I differentiate it once. I differentiate it once with respect to z. And if I actually मैं यहाँ से start कर रहा हूँ, differentiate किया मैंने, दोबारा rearrange करके, you will not believe, but this differentiated PGF is actually n times r over m multiplied by another PGF. और इस PGF और उस PGF में क्या फर्क है कि वहां पे जहां पे r लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, r माइनस, तो वहां पे आपके पास, एंड इट मेक सेंस क्योंकि डिफरेंशिएशन में वो कम हो जाती है ना, वो वहां पे पॉसिबल सक्सेसेस r है, यहाँ पे r माइनस 1 है, वहां पे n लिखा हुआ है, यहाँ पे n माइनस 1 लिखा हुआ है, वहां पे m लिखा हुआ है, यहाँ पे m माइनस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यस सर। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि नॉर्मली जब मैं रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता था बायनोमियल में, ज्योमेट्रिक में, तो मैं ये x लिखता था या क्या लिखता था, याद है आपको? ये Yes, n sir. m और ये नीचे लिखना मैं नहीं, ये वहां भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आपको खुद बताएं कि अगर मैं ये ना करूं और मैं सिर्फ इसको x या y लिखता, तो मुझे ये कैसे पता चलता है कि इन दोनों में कैसा क्या फर्क है, इसमें और इसमें? सही कर सर। समझ आ गई? ये पीजीएफ है इसका, Yes, वहां पे n भी चेंज हुआ है, m भी चेंज हुआ है, r भी चेंज हुआ है। सो एटलीस्ट आई नीड अ ट्रैक रिकॉर्ड, अदरवाइज आई वुड नेवर बी एबल टू सी दिस पैटर्न। मैं बस सिर्फ इसको देख लेता, ये फजूल फार्मूला होता मेरे लिए। इस फार्मूले का मतलब तभी बनता है जब आप रैंडम वेरिएबल को सिर्फ s ना लिखो, वहां पे लिखो r n m। तो जो इसका पीजीएफ है और इसका पीजीएफ, अब मैं यहाँ पे r माइनस 1 लिखता हूँ, n माइनस 1 लिखता हूँ, m माइनस 1 लिखता हूँ, इन दोनों के पीजीएफ में यही फर्क है कि ये पीजीएफ इधर इसका आ रहा है और ये उसके पीजीएफ का डेरिवेटिव है। क्लियर हो गई बात? सही है। और ये मैथ आप घर पे कर ले, ये मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। देयर इज नथिंग एक्चुअली फैंसी हियर। जो आपने यहाँ से समझना है मुझसे वो ये है कि ये पैटर्न मैं चाह रहा था कि आप देख लें। अच्छा, अब आप क्या काम करें, ये तो हमें दिस विल हेल्प अस इन द मीन, या मीन calculation, but we also need variance, so it would be nice if I differentiate Yes. this twice. If I differentiate this twice, तो बजाय ये सारी कहानी रिपीट करने की, ये सारी कहानी रिपीट करने की, मैंने एक पैटर्न ऑलरेडी नोट किया है। पैटर्न क्या है आपको याद है? जिस तरह लेप्लास में आप क्या करते थे कि इफ यू डिफरेंशिएट समथिंग बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका लेप्लास में क्या मतलब बनता था? मल्टीप्लिकेशन बाय s ना। Yes. अब इसका Yes, क्या फायदा sir. है? इसका फायदा Yes, ये sir. है कि अगर आप, और लेट्स से इनिशियल कंडीशन को मैं जीरो कर लेता हूं ताकि वो मसला ना हो जाए, आसान हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी चीज को दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं दोबारा Yes, रिपीट sir. नहीं करूंगा, आई विल सिंपली डू दैट अगेन। तो यहां पे मुझे बताओ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैं आपसे उसी तरह का फार्मूला मांग लूं कि यहां पे d बाई डी जेड का, d बाई डी जी में कर रहा हूं ना, यहां पे d बाई डी जी जी यहां पे सर। क्या कर रहा है बेसिकली? ये n टाइम्स r डिवाइडेड बाय m से मल्टीप्लाई कर रहा है। By M. कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. और उसके बाद कुछ चेंज जी भी सर कर रहा कर है, रहे चेंज भी। तो नहीं मैं सर। वो नोट कर लेता हूं कि इसने चेंज क्या करना है और इसने मल्टीप्लाई क्या करना है, ये दो चीजें मैं नोट कर लेता हूं। ठीक है, सही। तो सही जो चेंज करना है इसने n को n माइनस 1 बना लिया, m को इसने m माइनस 1, तो इसका मतलब है कि हर एक को 1 लेस कर देता है ना, हर पैरामीटर को ये 1 लेस कर देता है। एग्रीड? जी सर। मतलब जो भी n है, n की जगह 10 होता तो ये 9 कर देता है इसको, m की जगह 15 होता तो इसने इसको 14 कर देना था। अब इसको ऐसे देख ले। अब अगर मैं इसके ऊपर दोबारा डेरिवेटिव लगा दूं, इसके ऊपर d ओवर dz दोबारा कर लेता हूं, तो ये इधर दोबारा लगाना पड़ेगा मुझे, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा।
अब वो d ओवर dz में इस पे लगाऊंगा, यस और नो? जी तो अब इसके साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ था, समझ यस आ सर गई? ये वहां पे मैंने n जी और r को मल्टीप्लाई सलमान किया था, अब मैं इस n माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? r माइनस 1 से। वहां पे मैंने m पे डिवाइड किया, अब मैं किस पे डिवाइड करूंगा? m माइनस 1 पे। और ये n minus 1 will change to n minus 2, m minus 1 will change to m minus 2, and that is exactly what I get here. Differentiation again, ये अपनी ओके जगह पे रहा, और अब मैंने वही काम उसके साथ किया है। Does that make sense? यस सर Exactly वही चीज है, सिर्फ n मतलब जो n के साथ हुआ है अब वो n minus 1 के साथ हो रहा है, जो r के साथ हुआ था अब वो r minus 1 के साथ हो रहा है, जो m के साथ हो रहा है वो m minus 1 के साथ हो रहा है, और यहाँ पे वो भी चेंज हो गया ना, ये कम हो गया फर्दर। Is everybody following that? यस सर अब इसके बाद आई एम रेडी, नाउ आई कैन जस्ट सेट z to 1, क्योंकि दो डेरिवेटिव्स मेरे पास आ गए ना। अब कोई मुझे बता सकता है कि इसका फायदा क्या है इस तरह लिखने का? इसका फायदा ये है कि मुझे फार्मूला तो पीजीएफ का पता है ना, फार्मूला ये है ना, तो इस फार्मूले में मैंने सिर्फ n m और r को चेंज करना है, बाकी कैलकुलेशन तो मुझे उधर से आ रही है ना, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है? आई डोंट नीड टू लर्न अ न्यू थिंग। अब मैं क्या करूंगा, इफ आई सेट z to 1, मुझे पता है कि वो मुझे फर्स्ट मीन दे दे, फर्स्ट मोमेंट दे देगा जो कि मेरा मीन होता है, एंड मीन इज n, ये n ओ r ओवर m मुझे पहले भी मिला था, रिमेंबर इट वाज n times r over m. r over m is can be seen as the success probability of one, yeah, variable, and you just multiply them n because there are n variables. Clear ho gayi? यस सर And when I set z to 1 in the double derivative, that gives me this product form, random variable minus 1, ये जो आप पता है ये फॉलोइंग फैक्टोरियल वाला फॉर्म था, ये इधर से मिल जाएगा, और ये मुझे पता है कि वेरिएंस इससे कैसे रिकवर करनी है। आपको याद है मुझे एक फार्मूला याद था कि वेरिएंस ऑफ x इज e एक्सपेक्टेशन ऑफ x टाइम्स x माइनस 1 माइनस इस x और x को आप रिप्लेस करो मीन से, सो म्यू x टाइम्स म्यू x माइनस 1, दिस विल गिव मी द वेरिएंस। मैं यही कर रहा हूँ, और ये सारा मैथ, ये हॉरिबल मैथ है लेकिन आप खुद कर सकते हैं, एंड पे आपको वही फार्मूला मिलेगा जो लास्ट टाइम हमें मिला था। Now compare these two derivations with the derivation we had in our previous lecture. This is so easy because we are using PGF. वहां पे हमारे पास PGF अवेलेबल नहीं था, ठीक है? यस सर Are there any questions? Because क्योंकि इसके बाद मैं अभी एग्जांपल शुरू करने लगा हूं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। So basically we have two ways of deriving these expectations using the tree diagram, which was also very revealing क्योंकि we learned many things. ये मैं चाहता था मैं सिर्फ ये बता सकता था, लेकिन आई वांटेड यू टू लर्न दैट, क्योंकि इसमें मसला ये है कि इसमें ये रिजल्ट आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है? लेकिन वो जो उसमें ट्री डायग्राम में जो पैटर्न थे कि दो वेरिएबल्स, किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान डिपेंडेंस चेंज नहीं होगी, और ये वो चीज़ आप कभी भी ना सीखते अगर मैं सिर्फ ये स्किप कर देता था। सो समटाइम्स गोइंग, ये जो हम कहते हैं ना शॉर्टकट जो मारते हैं, शॉर्टकट आपको रिजल्ट तक तो पहुंचा देते हैं लेकिन यू डोंट लर्न एनीथिंग, ठीक है? Sometimes you यस need to go the long way to learn it properly. सर एक दफा ये वेरिएंस के बारे में बता देंगे क्या क्या था इसमें? वेरिएंस क्या बता रहा है? यस सर वेरिएंस तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था ना कि मीन हमारे पास एक सॉरी कैलकुलेट कैसे किए ये फॉर्मूला ये जो है ये वेरिएंस होता, तो ये हमने लास्ट टाइम आपको याद है हमने वेरिएंस का ओरिजिनल फार्मूला ये था, वेरिएंस of any random variable was simply an expectation where we take the random variable, subtract from it the typical value which is mean, yeah, and then we square that deviation, and that is a transformation, yeah, so you can think of it as a transformation, और transformation किस चीज को represent कर रहा है?
स्प्रेड को कि कितना स्प्रेड है, टिपिकल वैल्यू से रैंडम वेरिएबल कितना आगे पीछे हो रहा है, कितना। सर लेकिन इस यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो रहा। नहीं वो तो ये तो फार्मूला है ना, ये डिफिनेशन है। इसको हमने जब इसके ऊपर ये स्क्वायर का फार्मूला लगाया था तो इसको हमने प्रूव किया था कि दिस कैन आल्सो बी सीन एज x टाइम्स x माइनस 1 माइनस expectation of x minus 1 or multiply mean of x minus 1. This will also give you the same result. ये स्क्वायर इस पे लगाए, ये हमने प्रूव किया था एक लेक्चर में। ये x squared minus 2 mu x plus mu x squared, ये उससे आया था ना ये रिजल्ट। We have basically used this many times. ये पहली दफा मैं नहीं कर रहा, ठीक है। और इसलिए मैंने बताया था कि it's better to remember this. इसका इवन एक और वर्जन भी था, किसी को याद है? इसके अलावा भी एक वर्जन था कि the square of x minus the square of the mean, expectation of squared x minus the square of expectation of mean, ये भी एक फार्मूला था। yes sir। ये दो फार्मूले मैंने बताए थे। यहाँ पे ये फार्मूला जब भी आप पीजीएफ यूज करते हैं तो ये फार्मूला ज्यादा यूजफुल होता है, x टाइम्स x माइनस 1 वाला। सही है सर। सो ये मैंने वही किया है, ये आप उसको चेक कर लेना पिछले लेक्चर में। ठीक है सर। इसमें जो पंच लाइन है ना, आप हर लेक्चर में से कोशिश करें कि पंच लाइन पिक किया करें। पुराने लेक्चर तो आप खुद भी देख सकते हैं। पंच लाइन इसमें यह है कि डिफरेंशिएशन का इफेक्ट क्या होता है। And if you fail to notice this, if you are not careful enough to notice what is going on, you will have to repeat this same thing again, और वो इससे ज्यादा गंभीर होगा। समझ आ गई? जी सर। तो आप कभी भी जब भी आप मैथ कर रहे होते हैं तो आप जो आपके पास रिजल्ट आते हैं उसको नोट करना है कि क्या हो रहा है, हाउ कैन दैट सेव योर लाइफ। सही सर। सो लेट्स अप्लाई दिस, लेट्स हैव अ रीकैप। रीकैप हमारा ये है, मैं फॉर्मूले रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वी हैव ऑल द डिस्कशन। हमारे पास जब भी ड्रॉज विदाउट रिप्लेसमेंट्स हो, क्या हो ड्रॉज विदाउट, अच्छा अब ये ड्रॉज विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे जहन में हमेशा एक बॉक्स आता है या एक और चीज है, एक और भी है, अर्न भी आता है, अर्न एक और नाम है, और एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है, वास। ये तीन नाम आते हैं, बॉक्स, अर्न एंड वास। और या किसी में फूल होते हैं, किसी में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किसी में कॉइन्स होते हैं, बॉल्स होते हैं, और दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप जिसको हम फेवरेबल कहते हैं, दूसरा अनफेवरेबल, सक्सेस, फेलियर, और फिर हम ड्रॉ करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। नाउ दिस इज जस्ट अ मॉडल, दिस इज जस्ट ए मॉडल। आप ये ना देखें कि हर दफा बॉक्स ही होगा, आपको ये आप ये खुद ही ढूंढना है कि उसमें से बॉक्स क्या है। वो बॉक्स आपने खुद ढूंढना है, वो लिखा नहीं होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में ये कौन सा बैच है आप लोगों का? बैच 18 बैच 18 है ना? yes, और sir. आपके ख्याल में इस टाइम इस लेक्चर में कितने लोग बैठे हैं मेरे सामने? कोई गिन सकता है? गिन के बता दे मुझे और मोमल को निकाल के। 5 कितने? 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए ना यहाँ पे। जी सर। और बैच 18 की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 80 के करीब कुछ। लेट्स से हम 80 मान लेते हैं, ठीक है? 80 स्टूडेंट्स हैं। ये बताओ, ये कहीं पे लिखा हुआ है कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है? ये आपको खुद ही पता चल जाता है। ये विद रिप्लेसमेंट नहीं है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि आप बार बार तो नहीं आ रहे हैं ना, एक स्टूडेंट 5 दफा तो नहीं आ रहा। अब मैं अगर क्लास में कोई कैटेगरीज बनाता हूं, मैं चाहूं मेल और फीमेल का बना लूं, या चाहे मैं बना लूं कि जो है ना मेडलिस्ट्स और नॉन मेडलिस्ट्स, लेगर्स और रेगुलर स्टूडेंट्स, मैं जो मर्जी है कर दूं। मैं 2 कैटेगरी बना सकता हूं। मैं जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछूंगा ये ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम उधर फिट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, ये तो आसान था ना, इसको स्पॉट करना आसान होता है कि यार स्टूडेंट्स है। कुछ जगहों पे आसान नहीं होता। ये बताएं, ये आजकल बहुत ज़्यादा डेटा साइंस और
मशीन लर्निंग, कोई किसी ने कोर्स किया है ऑनलाइन, कोई ट्यूटोरियल्स वीडियोस देखे हैं उसमें? तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, the others can also follow it, you don't need to be a data scientist to follow to understand this. आपके पास होता है बेसिकली डेटा सेट गिवन होता है ना, और डेटा सेट यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए टेबल, या कि आपके पास कुछ क्वांटिटीज हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, लेट्स से x1 है उसकी वैल्यूज है, x2 है उसकी वैल्यूज है, एंड सो ऑन, और फिर एक टारगेट वेरिएबल होता है. सो मे बी यू want to investigate how a variable depends on some other variables. यहां तक बात समझ आ गई? जी सर. और ये आपके पास ये डेटा आ गया. अब इस डेटा को आप यूज करना चाह रहे हैं टू बिल्ड सम मॉडल. अब ये कैसे करते हैं ये इशू नहीं है. इशू ये है कि डू यू वांट टू यूज ऑल द डेटा और डू यू वांट टू यूज पार्ट ऑफ द डेटा. तो आपके जहन में क्या आ रहा है कि कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? वुड यू लाइक टू यूज ऑल द डेटा? लेट्स से मेरे पास यहाँ पे ये 1000 रोज हैं, 1000. So would you like to use all these 1000 rows to build your model, or some of them? All? हाँ, कॉमन सेंस ये कहता है कि आप सबको यूज करो. आपके पास मॉडल आ गया ना, ठीक है. मैं इसको पिक्टोरियली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपके पास लेट सपोज ये 3 नहीं है, एक ही वेरिएबल है, ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ पॉइंट्स है, और ये डेटा इस तरह का है, और आपने इसके ऊपर एक मॉडल, ये स्ट्रेट लाइन फिट कर दिया कि मेरे ख्याल में ये डेटा जो है ना ये स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आ रहा है मुझे. क्या स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आ रहा है? आप इस मॉडल को टेस्ट कैसे करेंगे कि ठीक है गलत है? आप उसी डेटा पे टेस्ट करेंगे जिस पे आपने फिट किया है, तो उस पे तो ठीक ही आएगा ना. जी सर. तो आपने फिर तो आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है ना. यस. ये ऐसा ही है कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं क्लास में और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो मैं फिर क्या टेस्ट कर रहा हूँ? मैं आपका रटा टेस्ट कर रहा हूँ. फिर वो अलग बात है कि जब एग्जाम वो क्लास से नहीं आता फिर स्टूडेंट कहते हैं आउट ऑफ स्कोप है ना, तो उसका तो पूछने का मतलब ही कोई नहीं है ना. अगर आप वही चीज पूछ रहे हैं तो फिर एग्जाम क्यों ले रहे हैं? फिर आप वैसे ही पास कर दो सबको. समझ आ रही है बात या नहीं? जी तो सर. यू कैन नॉट एक्चुअली इट्स लाइक रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर. तो अक्लमंदी ये है कि आप सारे डेटा को यूज ना करो, आप कुछ डेटा को रखो टेस्टिंग के लिए, ताकि पता तो चले ना कि कितने पानी में है आप. यस सर. तो उसके लिए जो डेटा आप इससे उठाएंगे फिटिंग के लिए, मॉडल बिल्डिंग के लिए, वो इस प्रॉब्लम उस पे ये आपका हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगेगा, तो बता सकते हैं मुझे? ये उधर एग्जैक्टली लग रहा है. ये उस पैसे लगेगा कि आप उस 1000 से डेटा अलग करेंगे, उस पे मॉडल बनाएंगे, और जो बचेगा डेटा, तो एक ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस बन गया, विदाउट रिप्लेसमेंट. फिर जब आप अपना मॉडल उस पर टेस्ट करेंगे ना उस नए डेटा पे, तो कुछ के लिए आपका मॉडल ठीक रिजल्ट देगा और कुछ के लिए आपका मॉडल गलत रिजल्ट देगा. तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है? तीसरी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, मुझे बताएं. तीसरी क्या है उसकी सर? तो ये बर्नौली इसमें नजर आ रहा है आपको या नहीं? ठीक है ना. लेकिन ये बर्नौली इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है. यस सर. तो ये आप जब मशीन लर्निंग में जाएंगे तो यही हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बार बार उधर भी आएगा. वो अलग बात है कि वो जिसको हाइपरज्योमेट्रिक का पता नहीं है वो कभी भी उसको यूज नहीं कर सकता. बट आई होप यू कैन यूज दिस आइडिया. सो लेट्स गेट अवे. कोई क्वेश्चन था? नो सर. So let's apply this knowledge. Okay, so what we have in mind is that we will have n draws, और ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा था कि ड्रॉज हमेशा फिजिकल ड्रॉज नहीं होंगे. दिस ड्रॉज विल बी मेंटल ड्रॉज. आपको दिमाग में लगाने हैं कि ड्रॉ कहाँ से कहाँ बनाने हैं, ठीक है. हर जगह लिखा नहीं होगा ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा. इसी तरह देयर विल बी आर पॉसिबल सक्सेसेस, पॉसिबल
और यू कैन से पूल ऑफ सक्सेसेस, पूल ऑफ। इसकी मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ आपके पास। लेट्स से इस्लामाबाद में अभी इस टाइम पे इस्लामाबाद में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें कुछ को वायरस कोविड हुआ होगा, कुछ को नहीं हुआ होगा ना। यस सर। तो आप एक को फेवरेबल कह सकते हैं, दूसरे को अनफेवरेबल कह सकते हैं, और जो आप रैंडमली लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यस ये विदाउट रिप्लेसमेंट ही है, ये भी हाइपरजोमेट्रिक। मतलब आपको ये बताऊं कि जो बायनोमियल है वो हर जगह नहीं लगता, वो कुछ जगहों पे लगता है, लेकिन हाइपरजोमेट्रिक बहुत केसेस में, और लॉटरी में तो सीधा सीधा लगता है। लॉटरी में तो है ही हाइपरजोमेट्रिक, जो टिकट्स आप खरीदते हैं ना, यार उसमें गुनाह है, लेकिन अगर आप इमेजिन करें तो। सो देयर आर, और या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो है ना, आप एन लॉटरी टिकट खरीदते हैं, ठीक है, और आर जी पॉसिबल सर। वहां पे प्राइजेस हैं, ठीक है, जी सर। या आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, एम है। एम में कुछ प्राइजेस है और कुछ वैसी हैं, जिस तरह शुगर पिल आपको दे दिया किसी ने, या वो जो मोंटी हॉल प्रॉब्लम में जो बकरी दरवाजे के पीछे बकरी पड़ी हुई थी, ठीक है ना। जी सर। So whenever you have such a problem and your random variable x, अब मैं x यूज कर सकता हूं कि I don't need this derivation every time. If my random variable is the number of successes, yeah, in those n draws, yeah, that will follow a hypergeometric distribution, और hypergeometric distribution में जब मैं hg लिखूंगा तो नीचे में लिखूंगा n r m, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन अगर मैं इसका पीडीएफ कैलकुलेट करूंगा तो ये एच जी नीचे ब्रैकेट में चले जाएंगे, कॉलर सेमी कॉलन के बाद एन आर एम, और यहाँ पे मेरा जो भी क्वेश्चन है के स्मॉल एक्स जो भी है वो इधर आएगा। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई दिस टू दिस प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल किसी को पता है कि क्या होता है उसमें? फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप उसकी जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको चेक भी तो करना होता है ना, सारे ठीक तो नहीं होते ना। यस सर। अब आप हर एक को चेक तो नहीं कर सकते ना कि हर एक को आप चेक करेंगे। नो सर। तो ये आप जहन में रखिए कि जो कॉस्ट बनती है ना, जो पाकिस्तान को जो चाइना की तरफ से चीजें आती है ना, जी सर। और वही चीजें चाइना जब यूरोप भेजता है, तो आप भी जहन में रख लें कि उसमें फर्क सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल का होता है। प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोस्टली एक ही होता है। सही है। तो हमारे केस में हो सकता है वो 1000 आइटम्स के बाद चेक करे, या कोई चेक ही ना करे, और वहां पे आपको वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली अ हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे कुछ स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होंगे, कुछ नहीं होंगे। दो टाइप्स के बन रहे हैं, एक सक्सेस फेलियर बन गया, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये तो नहीं है कि आप दोबारा वही चीज को जो आप गलत डिफेक्टिव आ गया वो दोबारा उसको थोड़ी टेस्ट करेंगे। नो सर। हाँ, या आप जब सब्जी मंडी से फ्रूट्स लेते हैं तो आप वहां पे भी आप देखते हैं कि यार किस दुकान से मैं खरीद लूं, ठीक है ना, तो आप रैंडमली कुछ उठाएंगे और उसमें देख लेंगे। सो लेट्स से यू हैव अ लॉट of 100 items, yeah, example आपके पास आ गया, and somehow you know, this is just to make a problem, that 20 of them are defective, ठीक है, and 80 are non defective, और आपका मतलब defective में ही है कि defective कितने हैं। say you take 30 items randomly, so randomly choose 30 items। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? m 100 है, और r की वैल्यू आप तब लिखेंगे जब आप डिक्लेयर करेंगे कि आपका सक्सेस क्या है। तो आप यहाँ पे लिख दें कि जो डिफेक्टिव है, ये आप जब तक लिखेंगे नहीं क्लियर नहीं होगा। ये डिफेक्टिव रिप्रेजेंट्स माय सक्सेस, तो देन r इज इक्वल टू 20, और n क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉज। नंबर ऑफ ड्रॉज 30 रैंडम आइटम्स, 30 ड्रॉज है ना, 30 ड्रॉज हो गए एंड टेस्टेड। तो एक्सपेरिमेंट भी आपने कर दिया कि आप टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली उनको। नाउ a lot is accepted if one or fewer items are defective। ये वही है जो आप फ्रूट मार्केट में करते हैं ना, कि आप कह रहे हैं कि इन 30 में
अगर सर सिर्फ एक डिफेक्टिव आ गया, ज्यादा से ज्यादा एक डिफेक्टिव मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, अगर कोई भी नहीं आया फिर तो खैर है ना, फिर तो वैसे ही बेस्ट सिनेरियो है। लेकिन एक को मैं बर्दाश्त कर लूंगा, एक से ज्यादा को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब ये है कि a lot is accepted if one or fewer, in other words you will reject it if there are more than one defective items, more than one। यस सर हाँ, इसमें N20 नहीं होगा, हम लोगों का गिवन होता है ना, S गिवन M ट्रायल्स नहीं में नहीं, M वो आप सक्सेस। उसको दूसरे, ये मैंने उस उधर भी बताया था कि ये कंफ्यूजिंग होता है। वो बायनोमियल एंगल से जब आप देखते हैं तो ये वो लगता है उधर से, लेकिन वो हमने कर दिया कि वो तब होगा जब ये इंडिपेंडेंट होगी, विदाउट रिप्लेसमेंट होंगे वो। ठीक है ना? अगर आपने लेक्चर टाइम पे ऐड किया है, हमने शुरू में भी ये बात की है कि एक्चुअल जो विदाउट रिप्लेसमेंट का जो प्रॉब्लम है वो यही है जो मैं बता रहा हूं कि n इज द नंबर ऑफ ड्रॉज, r is the number of successes possible and m is the number of elements। लेकिन ये सेटिंग है विदाउट रिप्लेसमेंट की। किसकी? if you want to solve this problem using binomial distribution, then you have to change this problem and you have to change it to another problem where r becomes the number of trials। ठीक है? and you require n successes and m trials। तो ये फॉर्मुलेशन चेंज हो जाता है, वो उसका इंटरप्रिटेशन इतना आसान नहीं है। देखो ये मैंने लिखा हुआ है इधर, इधर क्या है, इधर ये sm है ना, ये क्या है, sr है। रिमेंबर r इज योर नंबर ऑफ सक्सेसेस उधर विदाउट रिप्लेसमेंट के सिनेरियो में, लेकिन यहां पे उसको आप कंडीशन कर रहे हैं और कंडीशनिंग के लिए यहां पे n यूज कर रहे हैं, जो कि उधर नंबर ऑफ ड्रॉज है लेकिन यहां पे नंबर ऑफ सक्सेसेस है। ठीक है? तो I would encourage you to use this technique only for the math, क्योंकि this changes the problem। ये प्रॉब्लम को क्या कर देता है, चेंज कर लेता है। एक्चुअल प्रॉब्लम आपका विदाउट रिप्लेसमेंट ही है। ठीक है? दिस वाज अ शॉर्टकट टू हैव आवर पीडीएफ इन अ क्विक वे। ठीक है? समझ आ गई ये बात? या अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? या आप इस पे सोच सकते हैं कि वहां पे ये चेंज क्यों होता है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये बट इट्स अ मोर एडवांस्ड क्वेश्चन कि व्हाई शुड एस आर हैव आर इन इट, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है और आप बेसिकली वहां पे जो कंडीशनिंग कर रहे हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कर रहे हैं कि इतने ही आपने ड्रॉ किए हैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट भी अगर मैं कर दूं, मैं अगर विदाउट रिप्लेसमेंट भी कर दूं तो वो n से ज्यादा तो नहीं हो सकते, वो आपने n ही ड्रॉ करने हैं। तो ये इट्स अ वेरी ट्विस्टी आर्गुमेंट। ठीक है? बट दिस इज वेरी क्लियर दैट वी हैव टू गो फॉर द एक्चुअल प्रॉब्लम। ये ऐसा ही है ना, आपके पास एक प्रॉब्लम होता है गिवन, उस प्रॉब्लम को आप किसी और प्रॉब्लम उसे बनाते हैं, कभी उसका ट्रांसफॉर्म लेते हैं। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, आप जब ट्रांसफॉर्म करते हैं ना किसी प्रॉब्लम को, आपके पास एक सिग्नल है x ऑफ t, आप उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या बनता है आपके पास, आप ये लिखते हैं ना, एक्स x ऑफ s लिखते हैं या नहीं लिखते? यस सर। अच्छा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है, और मैं इसको ये क्या कर देता हूँ, ये x ऑफ s मैं इसको एज एन इनपुट देता हूँ, और आउटपुट क्या होता है मेरे पास, वाई ऑफ एस। ये इसमें मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मुझे बताओ। ये बहुत ज्यादा कॉमन है लेकिन इसमें एक टेक्निकल फ्लॉ है, क्योंकि ये सिग्नल नहीं है, दिस इज नॉट अ सिग्नल। सिग्नल तो x ऑफ t है ना, x ऑफ s किस खुशी में सिग्नल हो गया, ये तो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म इज नॉट अ सिग्नल। समझ आ गई बात?
सही है। Laplace transform is just another representation and that is not a signal x of t है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जो हम ये इसको हाइपरज्योमेट्रिक से बायनॉमियल बना के प्रॉब्लम को सॉल्व, यहाँ पे भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ना, लेप्लास में प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन एंड पे आपको इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म उसका लेना पड़ता है ना, वो आपका वो सिग्नल थोड़ी होता है वो। समझ आ रही है बात? यस सर। तो वही मामला उधर है, वो जो एस आर है वो यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए ट्रांसफॉर्म, क्योंकि वो आप उसको एक और प्रॉब्लम बना लेते हैं ताकि प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है ना वापस उस पर आना पड़ता है। ठीक है जी सर। एंड सेम गोज विद फेजर्स। आप जो फेजर बड़े शौक से आप फेजर यूज करते हैं, ये मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। आप जो है ना ये करते हैं ना, आपको याद है इंडक्टेंस का क्या होता है, इसके ऊपर आप क्या लिखते हैं फेजर लैंग्वेज में? जे ओमेगा एल। अब जे ओमेगा एल क्या चीज है? जे तो इमेजिनरी है। यस सर। तो आप इमेजिनरी चीज मुझे दिखा सकते हैं कि ये लेको ये जे है? नो सर। तो ये क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअल तो है ही नहीं, ये तो ट्रांसफॉर्म आपने किया हुआ है। यस सर। एक्चुअल तो एल है ना, और एल रियल है। समझ आ गई? जी सर। ठीक है। जी सर। तो जो भी नॉन सेंस आपको नजर आता है वो आपने कुछ गलत किया होता है। गलत नहीं है, लेकिन आपने कुछ चीजें चेंज की होती हैं, और जब आप उसको when you forget how to interpret something, then you fall into trouble. Okay, so let's get back to this problem. This problem is a problem without replacement, so m, r और n का वही मतलब होगा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है। ठीक है, so अब मुझे बताओ what is the expected number of defectives in the chosen lot? कोई बता सकता है? क्या फार्मूला था इसके लिए? पहले बात यह है कि आप x को डिफाइन करें ना, इट्स बेटर टू डिफाइन, क्योंकि आप पहले तो फिट करें। लेट्स डिफाइन x टू बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, क्योंकि आई एम व्यूइंग, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आई कैन नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग। व्यू द डिफेक्टिव एज ए सक्सेस। ठीक है, सो उस केस में x is the number of defectives in a lot of 30 items, and obviously x is hypergeometrically distributed with 100 elements, 20 favorable elements and 30 draws. ये draws है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर? क्या फार्मूला था? एन आर डिवाइड बाय एम। हाँ, तो ये n है, ये r है और ये m है। ठीक है, और दूसरा क्या है? हाउ मच कैन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स टिपिकली डिविएट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड? मुझे बताया इसका क्या मतलब है टिपिकली डिविएट? ये कौन सी क्वांटिटी पूछी जा रही है? स्प्रेड नहीं है तो? स्प्रेड है, लेकिन स्प्रेड के लिए हमारे पास दो क्वांटिटी होते हैं, एक वेरिएंस होता है और दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ये कौन सा है? वेरिएंस इसलिए नहीं है कि वेरिएंस में स्क्वायर हो जाता है ना। यस सर। तो स्क्वायर तो यूनिट चेंज कर लेता है ना, तो उसको स्क्वायर रूट लेते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। ये ठीक है। फिर जिस तरह आप आरएमएस वैल्यू के में स्क्वायर रूट आप क्यों लेते हैं? क्योंकि वो स्क्वायर से तो वो करंट स्क्वायर बन जाता है ना, आपको तो करंट चाहिए, सो देन यू टेक द स्क्वायर रूट, क्योंकि आपको करंट चाहिए ना। यहाँ पे भी आपको बेसिकली स्प्रेड वो डिविएशन चाहिए अपने ही यूनिट्स में, और यूनिट्स क्या है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, नॉट नंबर ऑफ स्क्वायर डिफेक्टिव्स। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद स्क्वायर रूट लेना होता है, अगर आप उसको डिविएशन मानते हैं तो। अब वेरिएंस का फार्मूला क्या है? हमने देखा था, आपको याद है? इट वाज एन इजी फार्मूला, क्योंकि आई कैन थिंक ऑफ इट एज n टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस व्हिच इज r ओवर m, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर व्हिच इज 1 माइनस r ओवर m, और फिर इसमें करेक्शन फैक्टर क्या था? m माइनस n डिवाइड बाय m माइनस 1। ये -1 था और m माइनस n था ना, तो मैंने यही किया है इधर। लेकिन दिस विल नॉट गिव मी व्हाट आई वांट द स्टैंडर्ड डिविएशन।
विच इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन लॉट इज एक्सेप्टेड। मुझे ये बताओ, एक्सेप्टेड को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा इन टर्म्स ऑफ एक्स? बताएं, इवेंट क्या बनेगा इसका? लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि जीरो भी तो हो सकता है ना, फिर भी एक्सेप्ट करेंगे। ये तो नहीं है आप कहेंगे इसमें जब तक डिफेक्टिव एक नहीं है फिर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है सर। आप एक्सेप्ट करेंगे एक हो या कुछ भी ना हो। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 1 भी आएगा, x इज इक्वल टू 0 भी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, hypergeometric evaluated at 0, hypergeometric evaluated at 1। अच्छा, I just want to check whether you remember something। ये हम जब लिखते हैं ना, चाहे हम बाइनोमियल लिखते हैं, हाइपरजियोमेट्रिक लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, मैं यही लिख लेता हूँ आपके लिए। ये एक तो हम ये लिखते हैं ना कि यहाँ पे हम लिखते हैं k और ये, और एक हम नीचे लिखते हैं ये जो n r m, इस चीज का क्या मतलब है? हम ये तो लिख लेते हैं कि चलो x इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दैट, लेकिन अगर मैं ना लिखूं ये मैं, तो व्हाट दिस इटसेल्फ, व्हाट इज दिस टेलिंग मी? ये क्या, किस चीज, किस बला का नाम है? क्योंकि जब ये चीजें इधर आ जाएंगी ना, फिर तो मैं इसको पीडीएफ कह सकता हूं, लेकिन ये पीडीएफ नहीं है सर। ये बता रहे कि किस टाइप का नहीं, ये मैंने आपको पहले बताया था। एक आप होता है, हम जब प्रोबेबिलिटी स्पेस लिखते थे ना, तो एक सैंपल स्पेस होता था, याद है आपको? यस सर। फिर क्या होता था, एक सिग्मा फील्ड होता था, इवेंट स्पेस। यस। और फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी मेजर होता था क्या, P, and Yes, P was acting only on events of this space। ठीक है, समझ आ गया? हमने जब रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया क्या, तो मेरे पास एक और प्रोबेबिलिटी स्पेस आ गया, जिसमें इस सिग्मा की जगह किसने ले ली, रियल लाइन ने। ठीक है, और यहां पे बोरेल फील्ड आ गया। यहां पे क्या आया, ये P इधर एज इट इज नहीं आ सकता, इसका अपना P होगा, जिसके लिए हमने इसके नीचे क्या लिखते थे, डू यू रिमेंबर दैट? और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये P लगाते हैं, P ऑफ A, so this A must be belong to that sigma field, it must belong to। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बोरेल सेट अप्लाई करूं, B, लेट से B belongs to this बोरेल फील्ड, तो आप इसके ऊपर P नहीं लगा सकते, आप इसके ऊपर क्या लगाएंगे, इसका अपना मेजर होता है। ये प्रोबेबिलिटी मेजर है ओरिजिनल स्पेस में, ये प्रोबेबिलिटी मेजर है जो आपने रियल लाइन पे हर चीज लाई है। ये आपका Px है बेसिकली। ये क्या है, और इसको अगर आपने समझना हो वो ये है कि यही क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं, इसका मुझे बताओ बोरेल सेट क्या बनेगा B, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है। बोरेल सेट क्या बनेगा इधर, कोई बता सकता है मुझे? रियल लाइन का ही सबसेट होगा ना? यस सर। और कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? 0 1। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये लिखूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेट, तो मुझे वही आंसर मिलना चाहिए ना, ये वाला। लेकिन यहां पे मैं P नहीं लिख सकता, क्योंकि P तो ओरिजिनल में है ना। जब मैं ये लिखता हूं, इसमें ये ओरिजिनल में चला गया, ये ओरिजिनल में नहीं है, ये बोरेल सेट है। यहां मैं क्या लिखूंगा,
px लिखूंगा या नहीं? So Yes, sir. this is what I mean by that. ये px तो हर दफा px तो आपको क्या पता है कौन सा px है? तो जब मैं लिखता हूं ना hg और नीचे मैं लिखता हूं क्या? तो इसका मतलब ये है कि this can apply to Borel sets directly. अब समझ आ रही है बात? सही है सर। और ये सेम गोज विद बायनोमियल। हम ये ज्यादा यूज इसलिए नहीं करते कि नॉर्मली हम पीडीएफ जब हमें मिल जाता है तो हम ये समेशन उधर ही कर लेते हैं, लेकिन यू मस्ट नॉट फॉरगेट द मीनिंग ऑफ दिस कि ये खुद क्या चीज है और ये खुद भी बहुत काम की चीज है, ठीक है? सो इन अदर वर्ड्स इफ आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, जब मैं लिखता हूं बायनोमियल, लेट्स से मैं लिखता हूं बायनोमियल, ठीक है, और मैं यहां पे पैरामीटर क्या लूंगा बताएं? n, P। तो दिस मस्ट एक्ट ऑन ए बोरेल सेट, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि ये मुझे क्या दे दे, ये मुझे पीडीएफ दे दे। तो पीडीएफ के लिए मैं ये चीजें नीचे नहीं लिखता, मैं यहां क्या लिखता हूं? सेमीकोलन और n, p, और यहां पे मैं क्या लिखता हूं? k, ठीक है? दिस k अपीयर्स एज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट फंक्शन, दिस इज ए, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? Because I know the meaning that this is now a probability measure, it requires a set, and which set? Borel set. तो ये कैसे कौन सा सेट बनेगा? अब आपको फर्क समझ आ गई? सर ये रियल लाइन वाला, रियल लाइन बोरेल सेट और पी ऑफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में मसला ये है ना कि जब आप px लिखते हैं ना, px या ये जो बायनोमियल इस फॉर्म में, तो आपको हर दफा ये ब्रैकेट लगाना पड़ता है, हर दफा आपको ये ब्रैकेट लगाना कन्वीनियंट नहीं है, तो इसलिए हमने पीडीएफ का कांसेप्ट यूज किया है। पीडीएफ आपको ये ब्रैकेट से बचाता है, आप वो सिर्फ क्या लिखते हैं फिर इधर, ठीक है? समझ आ गई बात? सो पीडीएफ इज जस्ट ए कन्वीनियंट वर्जन ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी मेजर। मैं अगर ये कह दूं आसान जुबानों में कि इन जनरल द पीडीएफ एट एक्स is the probability in that new measure, px, of which Borel set? अब मुझे बताओ ये इन दोनों में कौन सा लिखना आसान है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड ज्यादा आसान है। नहीं, लेफ्ट साइड आसान है, fx पॉइंट फंक्शन है ना। राइट साइड आपके जहन में होता है, लेकिन आप लिखते ये हैं ताकि आसानी बन जाए, आपको सिर्फ पॉइंट पे लगना पड़ता है, ये सेट बार बार नहीं लिखना पड़ता। यस सर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप ये यूज करते हैं, और वंस यू आर क्लियर फिर आप उसके बाद ये यूज करते हैं। तो आपको समझ आ रही है, इसलिए हम ये hg और ये hg दो वर्जन इसलिए लिख रहे हैं। सो when that's it's important to know, because when I let me just make one last comment. When I say x is distributed according to binomial or NP, या मैं लिखता हूं कि x is distributed according to, let's say, geometric, yeah, p and so on. In general, I am doing this. X is distributed according to this probability measure. ये probability measure की ये किस्में हैं. They are all different kinds, ठीक है? समझ आ गई बात? सही। Let's apply it to another problem and then we are done with it. Actually, no, we don't have another problem. We just let me just tell you something very interesting. You can write this same hypergeometric distribution in another form, where you replace those binomial coefficients to the following factorials. ये following factorial में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये आप खुद चेक कर लें, बल्कि ये आया भी इसी फॉर्म में था, हमने बाद में इसको चेंज किया था। यस। So अब अगर मैं एक काम करूं, there are some problems in which this m and r both, they are both very large. तो ये भी बहुत लार्ज नंबर होता है, और ये भी, और कोई मुझे बता सकता है कि जब ये दोनों लार्ज होंगे तो m माइनस r क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे?
बहुत स्मॉल। सोच लेना ये अप्रोचेस टू जीरो। नहीं, ये गड़बड़ है ना। ये इसका आता है कि आप लोगों को इन्फिनिटी पे आप गड़बड़ कर देते हैं ना। आप जब ये लार्ज नहीं थे तो इन दोनों के दरमियान रेशो था या नहीं था? हाँ सर। और वो रेशो जब आप इन दोनों को लार्ज करेंगे तो रेशो क्यों लार्ज होगा? वो रेशो तो चेंज नहीं होगा ना। यस सर। इट विल आल्सो बी फाइनाइट। तो जिस तरह, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, यू कैन थिंक ऑफ इट एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा? सर जरूरी तो नहीं है कि दोनों एक ही रेशो से हम उनको लेकिन इंक्रीज जो भी कर रहे रेशो हैं। हो, कोई रेशो तो होगा ना। और वो रेशो जीरो, सही। वो रेशो फाइनाइट नहीं होगा ना। सॉरी, वो रेशो जीरो नहीं होगा, इट विल बी सम फाइनाइट नंबर ना। तो आप इन दोनों में से किसी एक को भी जीरो जब एज्यूम करते हैं तो आप गड़बड़ कर रहे हैं ना। आप रैंडमनेस निकाल रहे हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल। फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल। आर क्या है? फेवरेबल। m माइनस आर क्या है? नॉन फेवरेबल। तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि जब m ज्यादा हो जाएगा तो नॉन फेवरेबल जीरो हो जाएंगे। आर यू टेलिंग मी दैट it will also approach infinity? दोनों बढ़ेंगे तो टोटल बढ़ेगा ना। यस सर। या आप मुझे बताएं कि दुनिया की पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो सिर्फ जो है ना वो मर्दों की पॉपुलेशन बढ़ेगी और ख्वातीन की नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। whenever there are two types they will both grow, ठीक है। सो लिमिट में ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि लिमिट में when something goes to infinity all the associated things also go to infinity, वरना वो जो रेशोज है वो फाइनाइट नहीं रहेंगे। फाइनाइट, यस सर। समझ आ गई बात? अब मुझे ये बताएं कि अब अगर इनमें से में कोई एक भी रेशो, तो इसका मतलब ये है कि व्हाट आई मीन इज दैट m goes to infinity, r goes to infinity and m minus r will also go to। अच्छा, आपके जहन में पता है क्या होता है? मैं आपको बताऊं, ये खबासत आती किधर से है? ये इधर से आ रही है। बेसिकली हम अपने दिमाग में ये लगा रहे होते हैं, और ये खबासत पता नहीं कहां से आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये या तो बॉलीवुड से आ रही है या एकेडमी से आ रही है। ये इक्वल टू इन्फिनिटी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। just things just get larger and larger and then everything else also gets larger. हाँ, अप्रोचेस इंफिनिटी होता है। क्या? अप्रोचेस इंफिनिटी होता है। हाँ, approaches infinity का मतलब ये है कि everything gets larger, so then everything gets larger and larger minus larger is not zero, ठीक है। तो अब ये बताएं कि मैं इनमें से कोई एक भी उठा लेता हूं ना, कोई भी। सो देखो ना, ये r है और ये r माइनस समथिंग है ना, एग्रीड। आई जस्ट पिक एनीथिंग, एनी ऑफ दीज फैक्टर्स। r को मैंने रिड्यूस किया, m को भी रिड्यूस किया। कैन आई राइट इट इन दिस फॉर्म? डू यू एग्री विद दिस? गेस करें, मैंने न्यूमरेटर से मैंने r कॉमन निकाला है और न्यूमरेटर से m निकाला है मैंने, ठीक है। यस सर। एंड देन आई अप्लाई दिस लिमिट। So r approaches infinity and m approaches infinity. What will happen to these two numbers? They will disappear. Zero Yes. approaches to zero. So it means that all these factors will approach to r or m. k की मर्जी है जो वैल्यू, ठीक है। And same will happen to the other type of factors. अब ये इसकी बारी है, इसके साथ वही करें, इसमें से m minus r निकाले और इसमें से m निकाले। So I can basically say that when m r and m minus r they all approach zero, what will happen to this distribution? n के तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो इस पे तो आपने लिमिट नहीं लगाया ना। लिमिट तो आपने m और r पे लगाया है ना। तो what will happen to this? Tell me. They will all be r over m, so this will be raised to what? k फैक्टर्स है ना, सारे फैक्टर्स को आपने सेम कर दिया, और इधर क्या हो गया? The other will be raised to
और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? यस और नो? ये क्या है मुझे ये बताइए क्या है? ये तो बाइनोमियल नहीं है, बाइनोमियल ये बाइनोमियल है या नहीं है? तो what happens is that your HG approaches a binomial distribution. और जो यहाँ पे n था वो चेंज नहीं हुआ, n अपनी जगह पे, और जो दो पैरामीटर्स थे r और m, they both now become one parameter. वो पैरामीटर क्या है? r over. So two parameters are collapsed into a single parameter, and the hypergeometric distribution can be approximated by a. ये बात समझ आ रही है? जी सर। और इसको अप्लाई करने के लिए जो गाइडलाइन है स्टैटिस्टिक्स के लोगों से वो ये है कि if this m is larger than, I don't know कि 100 है क्या है, कोई वो मुझे चेक करना पड़ेगा. If this m is larger than 100 and r is also reasonable, ठीक है ना, मुझे नहीं पता कि कितना है वो ये मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, then you can safely assume that. वरना आप सिमुलेशन में तो चेक कर ही सकते हैं ना, तो मसला नहीं है. और ये बाकी पॉइसन अप्रोक्सीमेशन हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे कि टाइम निकल गया है हमारा, ठीक है? सही है। There are any questions? सर थोड़ा सा नेगेटिव क्वेश्चन है, but I was wondering. Can you get a little louder? Can you hear me now? नहीं, मुझे किसी ने क्वेश्चन अगर पूछा है तो मुझे समझ नहीं आई वो. जी आप आवाज आ रही है? हेलो. ठीक है. Is there any question? नो सर। ठीक है सर इंशाल्लाह. आवाज आ रही है? माइक्रोफोन मसला हो गया। ठीक है. So we can continue this on Tuesday, okay? यस सर। Okay, Allah Hafiz. ओके सर, खुदा हाफिज। Allah Hafiz.